ہم نبی کے دیوانے، نبی کے چاہنے والے، نبی کی پیدائش پر ہر سال جلوس محمدی نکالتے ہیں۔ ایک بات ٹھنڈے دماغ سے ذرا سوچو، جہاں پر ادب کا مقام ہو، ادب کا مقام، تمہارے کوئی بزرگ پیر صاحب وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہوں اور تم ان کے استقبال میں ناچتے ہوئے جاؤ، تو پورے بانس ننگلی میں سب سے زیادہ بدتمیز آدمی وہی مانا جائے گا۔ بولو مانا جائے گا نہیں مانا جائے گا؟ اگر ناچتا مسجد میں جاؤ ادب کے دائرے میں عبادت، اور تم نیت باندھ کے ناچنا شروع کر دو، تم کہا رہے یار میں تو جھوم جھوم کے خوشی خوشی میں نماز پڑھ رہی ہوں، کبھی ادھر ٹھمکا مارے، کبھی ادھر ٹھمکا مارے، کبھی ادھر کودے، کبھی ادھر پھاندے، تو بولو یہ ادب کے خلاف ہے کہ نہیں؟ مگر ہمارا کام جر تو وہی ہے، جلوس محمدی نکالیں، مگر طریقہ غلط ہے۔ مگر آج جو پیغمبر اسلام، جو بانی اسلام ہے، انہی کے جلوس میں اتنی بدتمیزیاں، اتنی خرافاتیں، صحیح بتا رہا ہوں، آدھے لوگ تو صرف اسی وجہ سے مارے جا رہے ہیں، آدھے لوگ اسی وجہ سے مارے جا رہے ہیں۔ جلوس محمدی میں ہوتا کیا ہے؟ چلے بڑے بڑے ڈی جے رکھ لیے، نعت ایسی پردی پڑھنے والوں نے جیسے پنجابی گانے، اور ایک نعت ہے سوڑا آیا سوڑا آیا، تم نے بھی شاید سنی ہوگی، اس پہ تو 50% لوگ، وہ پاکستان میں کسی نے پڑھ دیا سوڑا آیا تو 50% لوگ ڈانس کرتے ہیں۔ ڈی سی ایم میں بڑا بڑا وہ ڈی جے رکھنے کے بعد اور اس میں ناچتے ہوئے جا رہے ہیں۔ اب بولو خدا کی قسم میرے نبی کا نواسا، جن کا نام سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی ہے، اگر نبی کی محفل میں چیل بھی اگر زور سے بولتی ہوئی اڑ جائے، ایسی جلال بری نظر مارتے تھے، چیل کٹ کے گر جایا کرتی تھی۔ اس لیے انہوں نے کہا یہ ادب کا مقام ہے، ادب کا مقام، یاد رکھو اگر جو نبی کا غلام ہوگا تو جلوس محمدی میں بد نظمی نہ ہونے دے اور نہ کرے گا۔ میں بتا رہا ہوں کھلی ہوئی باتیں، دو چار ٹافی جیب میں بھر لی ہیں، جلوس نکل رہا ہے، لڑکیاں چھتوں پہ کھڑی ہیں، اور یہ دو چار لفنگے گنڈے لڑکے چلے جلوس کے نام سے چھتوں پہ کوئی ٹافیاں پھینک رہے ہیں۔ اس چیز کا نام جلوس ہے کیا؟ تمہیں غنڈہ گردی کرنی تھی گھر پہ رہنا، لیکن اللہ کے واسطے نبی کے جلوس میں مت آنا۔ کیا بات ہے! اور اگر آنا تو ایسے نبی کا غلام بن کے آنا جو غیر دیکھ کے کہیں واہ، جب نبی کے غلام کا یہ عالم ہے تو پھر نبیوں کے امام کا عالم کیا ہوگا؟ ایسا ایسا نعرہ نکال کے لاتا ہے جس کو سبحانہ یاد نہیں، الحمد یاد نہیں، قل هو اللہ یاد نہیں، یہ ساری چیزیں یاد نہیں، مگر نعرہ لگاتا ہے جہاں پہ اگر غیر مسلموں کا محلہ آ گیا، بس اس کے تن بدن میں اپنا وہی شرارتی جو جسم ہے نا اس کا، کودا پھاندا کہ ہم سب ایک ہیں۔ کائے کا ایک ہے تو کہ ہم سب ایک ہیں اور اسلام، اور کاٹ دیں گے اور مار دیں گے اور یوں کریں گے اور تو کریں گے۔ کائے کو کاٹے گا مارے گا تو؟ فجر کی نماز پڑھتا نہیں، ظہر کی پڑھتا نہیں، عصر کی، اپنے نفس کو تو مارتا نہیں تو؟ ارے اسلام نے اجازت یہ نہیں دی ہے، اور ہم ہیں خالی ملی جھگڑے کرتا پھر رہا، لڑائیاں کرتا پھر نہیں۔ ایسے لوگوں کو، ایسے لڑکوں کو اگر تم دیکھو، غیر نہیں تم خود اس کا کان پکڑ کے جلوس سے باہر کر دو، نکل۔
बहुत अच्छी बात। ये गुंडों का जुलूस नहीं है, ये गुंडों का जुलूस नहीं है, ये औबाश का जुलूस नहीं है, ये तो उनका जुलूस है जिस जुलूस में सिद्दीक अकबर हाजिर हुए हैं, फारूक आजम है, उस्मान गनी है, मौला अली है, हसन हुसैन है। अगर तुझे जुलूस में रहना है और जुलूस अगर निकालना है तो किरदार से तुझे नारा लगाना पड़ेगा, कैरेक्टर से नारा लगाना पड़ेगा। इसलिए गुलाम मोहम्मद छतों पे झांकता हुआ नहीं चलता, नजरें नीचे करके चलता है और गैर लोग भी देख के कलमा पढ़ लेते हैं। और ये चौकन्ना बना पड़ा है, इतना बेशरम है, इतना बेहया है यार। नबी की पैदाइश के मौके पर नबी के जुलूस पे ये गुंडागर्दी कर रहा, नबी के जुलूस पे इठला रहा। मोहल्ले के 2-4 लड़के इकट्ठे हुए, डीसीएम जोड़ा, तेल डाला, बड़े बड़े डीजे रखे और शोर मचाते हुए, जो उनमें से आधे भी पाक नहीं होंगे, सही बता रहा हूं। और उनसे पूछ लूं अगर के नबी की मां का नाम क्या था, नबी के बाप का नाम क्या था, नबी के नाना दादा का नाम क्या था, तो उन्हें एक को पता नहीं होगा, एक को भी पता नहीं होगा। नबी ने क्या तुम्हारे लिए नसीहत की है, क्या तुम्हें बताया, एक को भी पता नहीं होगा। और जुलूस में आकर के उलमा भी पीछे है, इमाम भी पीछे, हाफिज भी पीछे, कारी भी पीछे, हाजी भी पीछे, नमाजी भी पीछे, सबसे आगे ये गुंडा हो गया है और ये समझ रहा कि हमने जुलूस बड़ी शान से निकाला। इसका रिजल्ट अच्छा नहीं जाता है। तुमने यही कूदफान कर ली, गुंडागर्दी कर ली, लेकिन इस्लाम तो वो शांति वाला मजहब है, इस्लाम तो वो सुकून वाला मजहब है जो खुद नहीं खाता है, दूसरों को खिलाता है। अरे इस्लाम वो मजहब है। और हमारे यहां जुलूस मोहम्मदी को देख करके लोग बदजन हो जाते हैं, हमारे कारनामों को देख करके लोग फिर जाते हैं। पहले लोग दाढ़ी वालों को, टोपी वालों को अपनी अमानतें रखते थे, अब बराबर में बिठालना, मुसलमान को बराबर में बिठालना इस वक्त गवारा नहीं कर रहे हैं। क्यों? हमारे करतूत गलत हो गए। अरे यार, जिस नबी के जुलूस में ही मुसलमान गद्दारी करने लगे, जिस नबी के जुलूस में ही ये नौजवान यहां पे इसे अपना कैरेक्टर, किरदार दिखाना था, इस्लामी पहचान दिखानी थी, मगर ये इसमें शैतानियत करने लगे, बोलो फिर वो कहां कामयाब हो सकता? बोलो हो सकता क्या? लोग क्लिप बना बना करके भेजते हैं सऊदी अरब और कहां कहां, फिर इधर आदर से फतवे होते हैं कि जुलूस मोहम्मदी निकालना जायज नहीं। वो सिर्फ पूरा तरीका नहीं देखते हैं, वो सिर्फ यही आधी बात देख लेते। ऐसे ही मजारों पर औरतें बाल खोल के यूं झूम रही हैं, उतनी क्लिप बनाई और भेज दी। सजदे कर रही हैं, चाट रही हैं, चिपट रही हैं, वही क्लिप बनाई भेज दी। पूरे पसे मंजर नहीं देख रहे हैं, मगर ये चीज देख रहे हैं। इसी से आज इस्लाम बदनाम है। इस्लाम को, मुसलमान को जो दहशत गर्द कहा जा रहा है, दहशत गर्द कहा जा रहा है, वो सिर्फ हमारे आपके करतूतों की वजह से। समझे? वो मुसलमान थे जो 10 सहाबा किराम गए थे, कुरान पढ़ते पढ़ते नबी की मोहब्बत में यूं खड़े रहे, गर्दनें कट गई, उफ नहीं करा था उन्होंने। और तुम्हारे सामने ना गर्दनें कट रही हैं, ना कुछ हो रहा, नबी के जुलूस में जा रहे हो तब भी बदतमीजी कर रहे हो, ऐसे नारे लगा रहे हो जिसका इस्लाम से कोई ताल्लुक ही नहीं है, ऐसे भड़काओ नारे लगा रहे हो। इस्लाम जो है वो लड़ाई को, नफरत को, बुराइयों को दूर करने के लिए आया है, और आज यहीं से फिर नफरत और बुराई जन्म ले रही है। ये क्या है? क्या प्यारी इस्लाम। बोलो ये क्या हो सकता है क्या? इसलिए ये बातें कह रहा हूं, जुलूस के बाद अगर ये बातें कहूं तो तुम्हारे काम में नहीं आएंगी। जुलूस से पहले इसलिए कह रहा हूं, जुलूस इस शान से निकालो, जुलूस इस तरीके पर निकालो, अगर भाई देखे तो वो ये कहे कि हाँ ये है गुलाम नबी, बहन देखे तो ये कहे ये है गुलाम नबी। कोई मुस्लिम नहीं, अपना कहे तो क्या कहे, गैर मुस्लिम कहे वाकई यार इन्हें देख के लगता है कि जो इनका नबी होगा तो कैसा होगा।
आज उसी आका के जुलूस में हजारों गैर मुस्लिम, ये मिसालें ऐसी आई हैं कि गैर मुस्लिम लंगर चलाते हैं। गैर मुस्लिमों ने लंगर चला चला करके अपनी कामयाबी हासिल कर ली है, और तुम उसी नबी का कलमा पढ़ते हो, उसी नबी के जुलूस में रहते हो। तुम ऊपर को टाफियां फेंकते हो, ऊपर को पानी फेंकते हो, आंखें भोए चला चला के नाचते हो, कूदते हो। जिस चौराहे पे औरतें लड़कियां खड़ी हो, वहां पे तुम नबी की शर्मो हया से हट जाते हो, जिक्र खुदा जिक्र रसूल से हट जाते हो। तुम्हारी रगों में शैतान दौड़ने लगता है और तुम नाचने लगते हो, नाचने लगते हो। खुदा की कसम, नबी राजी नहीं हो सकते, नबी नाराज हो जाएंगे, नबी को तकलीफ हो जाएगी। और अल्लाह फरमाता है, इन्नल लज़ीना युज़ून अल्लाह व रसूलहु लानहुमुल्लाहु फिद दुनिया वल आखिरह। जो अल्लाह को और रसूलुल्लाह को तकलीफ पहुंचाता है, उस पे दुनिया में भी लानत होती है और आखिरत में भी लानत होती है। ये पैगाम इसलिए दिया, पता नहीं जुलूस से पहले यहां में तकरीर का मौका आए या ना आए। जुलूस निकालो अल्लाह के वास्ते, रसूलुल्लाह के वास्ते। इस्लाम को बदनाम होने मत देना। इस्लाम अगर बदनाम हो गया तो मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहोगे, मेरे आका का चेहरा नहीं देख पाओगे। याद रखना नौजवान, अपने भाइयों को भी बताना, तुम अपने दोस्तों को भी बताना, यार ऐसे मौके पे हंसी मजाक मत करो, ऐसे मौके पे नहीं नीची नजरें करके चलते चले जाओ। आंखों में नबी का दीदार हो, दिल में नबी की मोहब्बत हो। इसमें जो गलती हुई हो, अल्लाह की बारगाह में तौबा करते, मौला माफ़ फरमा दे। मुझे भी अमल की तौफीक, हम सबको अमल की तौफीक। आज से ये चर्चा शुरू कर दो, आपस में एक दूसरे को समझाना शुरू करो। जुलूस इस कायदे से निकले, इंशाअल्लाह इस साल और सुधार आएगा। फिर पूरा साल जब सुधरेगा तो आने वाले सालों में और ज़्यादा, ठीक है? इस बात पे सब रहोगे, तुम्हें सवाब मिलेगा। कोई भी भड़काऊ नारा नहीं, कोई भी ऐसा नारा नहीं जो किसी पे उंगलियां उठें, ऐसा। हमारा मजहब तो बहुत सीधा सच्चा मजहब है, हमें सिर्फ अपने मजहब का काम करना है, ठीक है?